సీనియస్ వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు జగన్నాథ్ రెడ్డి. విద్యార్థులు కష్టపడి చదివితే అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోగలుగుతారని తెలంగాణ మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వికారాబాద్ జిల్లా రీజనల్ కన్వీనర్ వినోద్ ఖన్నా అన్నారు. బుధవారం తాండూరులో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కమల్ అత్తర్ ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం వెల్ఫేర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో 2020 సంవత్సరం 10వ తరగతి ఇంటర్ డిగ్రీ ఫలితాల్లో ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వికారాబాద్ జిల్లా రీజనల్ కన్వీనర్ వినోద్ ఖన్నా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని వివిధ పాఠశాలలు కళాశాలలో ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు కష్టపడి చదివితే ఉన్నత లక్ష్యాలను చేరుకోగలుగుతారని అన్నారు. చదువుతో పాటు అన్ని రంగాల్లో ముందుకు సాగాలని సూచించారు. తల్లిదండ్రులు కూడా విద్యార్థులకు ఇష్టమైన రంగాల్లో ప్రోత్సహించాలని తెలిపారు. ముస్లిం వెల్ఫేర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో సొసైటీ ప్రతినిధులు, వివిధ పాఠశాలలు, కళాశాలల నిర్వాహకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Next, I would like to call our President Syed Kamal Atar sir, President of Muslim Welfare Association and as well as Muslim Welfare Skill Development Society to come on to the dash. Muslim Welfare Association and Muslim Welfare Skill Development Society, Abdul Rauf sir, to please come on to the dash. The program with Quran Tilawat. Our ex-president Muhammad Babar sir, to please come on to the dash. So thank you sir for giving your precious time and as well as करना चाहे आप एक पक्के इरादे से निकलो। बहुत से लोग ऐसा रहता माँ बाप का कि आप पकाओ खाओ घर में रहो, लेकिन कहीं भी नहीं है। अगर आप देख सकते हैं गुज़िश्ता 3 साल से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट कोचिंग भी हमारे our ex-president Muhammad Babar sir, to please come on to the dash. So thank you sir for giving your precious time and as well as వారి తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు మరియు వాళ్ళ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి, ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడి ఈ స్థాయికి తీసుకురావడానికి ఉపాధ్యాయులు ఎంతైతే కష్టపడతారో తల్లిదండ్రులు కూడా అలాగే కష్టపడతారు. కనుక మీరు రాబోయే రోజుల్లో దీనికి ఏ విధంగా బెటర్ దెన్ చేయగలుగుతారో దానికి ఆలోచించుకొని మీరు ఒక పని చేయాలి. ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి వినోద్ ఖన్నా గారికి మరియు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు సయ్యద్ కమాల్ అత్తర్ గారికి మరియు తాండూరు సీనియర్ పొలిటీషియన్ तालीम की अहमियत और इफादियत आप लोगों को शायद के शुक्रगुजार करने की जरूरत नहीं है। our ex-president Babar sir, to please come on to the dash. So thank you sir for giving your precious time and as well as जिसकी बिना पर आपने काफ़ी कोशिशें की, मेहनत की और आला अंदाज से आप लोगों ने कामयाबी हासिल की। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना खर्चा करने पर उतना उसके इजाफा होने के इम्कान होते हैं। और मैं मुख्तसर सबक है, मैं इसमें ज़्यादा ना बोलते हुए आपकी जो कोशिशें हैं, जो मेहनतें हैं, जो लगन है पढ़ाई के मुताबिक, हमेशा इसको जारी रखिए। तालीम इंसान को सलाहियतमंद, बाअखलाक और बाशऊर और एक बाइज्जतवार वक़ार शहरी बनाती है और अपने हुकूक़ को हासिल करने का एक वाहिद जरिया कि इंसान तालीम याफ्ता हो और अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मखलूक जमहूरी दायरे के अंदर अपने हुकूक़ को हासिल कर सकता है। मैं साथ ही साथ मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान से बेहद ममनून और मशहूर हूँ। उन्होंने आला नंबरात से पास होने वाले तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन की हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर एक इनामी तहनीती प्रोग्राम रखा है। इसको मैं इस प्रोग्राम को एक खैर का बाइस और अच्छाई का बाइस और हमारे तलबा और तालिबात के अंदर तालीमी जुस्तजू पैदा करने का एक वाहिद जरिया हम समझता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व रब्बुल आलमीन की कोशिशों को कबूल फरमाएं और हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को बिला मज़हब व मसलक का तरक्की नसीब फरमाएं और हमारे इस मुल्क को अमन और शांति का हमेशा गहवारा बनाए और इस मुल्क को हमारे इस मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की और अमन और शांति का गहवारा बनाए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आके आप लोग जमा हुए हैं, इसमें आपसे ज़्यादा आपके उस्तादों का रोल है जिन्होंने मेहनत की। खासकर प्राइवेट स्कूल्स में, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें तो एक टीचर को लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में 30,000 20,000 तनख्वाह लेके यहाँ पे प्रशासक करस्पॉन्डेंट हमारे
मौलाना अजहर साहब जिम्मेदार हैं, कम तनख्वाह में बच्चों को क्वालिटी वाली तालीम दें। आपका जो भी सब्जेक्ट है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी वही है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी वही है, लेकिन टॉपर्स पूरे जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के लोग हैं। उसकी वजह ये है, ये करस्पॉन्डेंट्स की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, उसके साथ साथ आप लोगों की भी मेहनत है। तो आप लोग भी दिल जान लगाकर पढ़ रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहूँगा, ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन एक बैनर है सिर्फ, ये जो प्रॉपर्टी है वो तांडू वालों की है सबकी, उसके लिए एक जिम्मेदार होना पड़ता है। जैसा कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन है, मारवाड़ी युवा मंच है और कई वीरशैव समाज है, तमाम समाज अपने अपने तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नाम जो है, मुस्लिम भी जो है वेलफेयर का काम करते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है उसके अंदर, कोई एक कम्युनिटी नहीं है उसके अंदर। अप्रिशिएट के काबिल है। इससे पहले भी यहाँ पे यूसेट की कोचिंग 3 साल से की जा रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं, कोई भी गाँव से आके कोई भी जो है तालीम हासिल कर सकता, कोचिंग ले सकता, फ्री कोचिंग वो भी। और उसके साथ साथ ये जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार है, एज ए वैलेंटियर, जो भी बच्चे आ रहे गांव से, उनकी हिफाजत के लिए बच्चे अगर कहीं भी बाहर जा रहे तो उनके ऊपर गहरी निगाह रखते हुए। तो मेरे बोलने का मकसद ये है, ये जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन है तमाम मज़ाहिब के लिए, एक ही मुस्लिम्स के लिए बोल के, तो इसको जो है गलत या हल्के में नहीं लेना। आने वाले दिनों में जूनियर कॉलेज भी कायम करने का इरादा है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। मैं जो है मेरे बच्चे अरे कृष्णावेदी कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़े, लास्ट जो है अभी 10th अभी बच्ची का हुआ, तो वहाँ पे मंदिर है। बहुत से लोग बोले अरे वहाँ मंदिर है, बच्चे को भेजते क्या? तालीम के लिए कोई जगह नहीं है, तालीम के लिए कोई जगह नहीं है। अभी बहुत से लोगों को जो है एक रहन में बात बसी हुई है, मस्जिद में हिंदू नहीं आ सकते। तो लास्ट गनी मौलाना और हमारे मौलाना खलील अहमद साहब की जिम्मेदारी में एक प्रोग्राम रखे, मस्जिद में नॉन मुस्लिम को वहाँ पे विजिट कराए, ऑल पार्टी ऑल जो भी है, RSS रहे तो बीजेपी रहे तो सब लोग आके देखे, बोले अरे भाई ये जो बनाया गया है ये मस्जिद है, हमारे जहन में एक अलग ही था, मस्जिद का नमूना एक अलग है, मस्जिद में हिंदू नहीं आ सकते बोल के। ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में सब आ सकते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ सकते, और ये सबके लिए। तो हम जो है अपने बीच जो पर्दा है उसको दूर करना है। आज बहुत से टॉपर्स बच्चे ही हैं, काबिल मुबारकबाद है। तांडूर में मैक्सिमम टॉपर्स मैं समझता हूँ 80% बच्चे ही हैं। कृष्णावेदी कॉन्सेप्ट में 586 मार्क्स लाए बच्ची, वो टॉपर है। सेंट मार्क्स में बच्ची जो टॉपर आई वो भी गर्ल्स है। ये गर्ल्स में जो भी है आज टॉप कर रहे जी अपने TN स्टूडेंट्स और खासकर माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को एक जगह जमा देकर मैं वाकई बहुत खुश हो रहा हूँ। काबिल मुबारकबाद हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया है, और उन लोगों को भी जिन्होंने कोशिश की है, आइंदा उन्हें भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ज़रूर। मैंने एक कहावत सुनी थी कि पंख बड़े होने से कुछ नहीं होता, यानी पर बड़े होने से कुछ नहीं होता, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए बड़े हौसले और इरादों की ज़रूरत होती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आपके हौसले बुलंद रखना है, आपके इरादे बुलंद रखना है, कामयाबियाँ ज़रूर आपके कदमों में आएंगी, ये मेरी दुआ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। दूसरी बात ये कि इतना बड़ा इवेंट हमने भी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में कम से कम 10-12 साल गुजारे हैं, मगर जनाब कमाल अफर साहब की और उनकी टीम की मौजूदगी में ये जो काम हो रहा है वो वाकई काबिल फ़ख्र है, काबिल तक़लीद है, काबिल तारीफ़ है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे ज़माने में सच मानिए हमारी स्टूडेंट लाइफ में ये सारी सहूलतें हमें मैसर नहीं थी, वरना हम आज कहीं के कहीं होते। आप लोग खुशनसीब हैं जिनको आपको ये मौका मिला है, ये इससे फ़ायदा उठाने का। आप उठाइए और यहाँ बिला मज़हब मिल्लत हर किस्म के फ़िरक़ों को जो है यहाँ पे जगह मिलती है, यहाँ सीखने का मौका मिलता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। इस जहरीले माहौल में यहाँ मेरी हिंदू बहनें भी बैठी हुई हैं, मेरी मुस्लिम बहनें भी बैठी हुई हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका सारा सहरा मुस्लिम वेलफेयर के
सदर और उनकी टीम पर जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं तांडूर में, सब अपने अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। जैसे गरोह साहब ने कहा कि आज हम लोग पत्थरों की दुनिया में हीरों को चमकाने की फिक्र कर रहे हैं। ये जुमला था हमारे तांडूर की एक वेल एजुकेटेड रिटायर्ड टीचर जो आज से मुझे 15 साल पहले बोले थे, जब हम अलमास की बुनियाद डाल रहे थे, तो उस वक्त एक नर्वस होके बोले थे कि तांडूर में पत्थरों की कदर है, हीरों की कदर नहीं है। लेकिन आज अल्लाह का फजल है कि आज मुझसे वो अभी भी 2-3 साल पहले से कंटिन्यू बात करते, तो आप बोलते कि हमारे ज़माने में अगर एजुकेशन की इतनी वैल्यू होती तो हम पता नहीं क्या करते। आज वो वक्त है कि माशाअल्लाह स्कूल्स लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, और ख़ास तौर पर जितने भी प्रैक्टिस और ट्यूशन्स के जो क्लासेस हो रहे हैं हमारे तांडूर में, जैसे मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन कर रही है, तो इस साल या लास्ट ईयर से मैं समझता हूँ हिंदू महासभा के भी लोग इस साल से वो लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बड़ी हमारी तांडूर के लिए खुशकिस्मती है। एजुकेशन किसी रिलीजन का नहीं होता, चाहे वो हिंदू महासभा के लोग ट्रेनिंग दे एमसेट की, चाहे मुस्लिम वेलफेयर के लोग दे, पढ़ना बच्चों को वही है जो किताब लिखी गई है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे तांडूर के लिए कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कदर शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये हमारी बहुत खुशकिस्मती की बात है। स्टेट का तो रिज़ल्ट बहुत पहले आ गया था। हमारा चूँकि CBSE है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 CBSE स्कूल्स है, हमारा और एक हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उसमें भी 10th है, हमारे पास भी एक 10th। कल रिज़ल्ट आया हमारा, शायद अल्लाह ताला आपके साथ हमारे को भी बिठाना चाह रहा था, इसलिए रिज़ल्ट कल आ गया। अगर लेट आता तो हम आपके साथ शरीक नहीं रहते। बहुत अच्छा 100% रिजल्ट है हमारे अलमास का। ये 6th ईयर है हमारा अलमास का टॉप रिजल्ट का, और इसी तरीके से ये TH कॉलेज का 1st ईयर है हमारा, जिसमें हमारे कॉलेज की लड़की स्टेट में 3rd रैंक लाई है। ये और तांडूर के वास्ते बड़ी इज्जत है, हमारे TH के वास्ते नहीं। TH तो कोने में है कहीं एक जगह, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है TH कॉलेज है कहाँ, लेकिन इतना मालूम है कि तांडूर की बच्ची पूरे स्टेट में 3rd रैंक लेगी। चारों के चारों हमारे बैचेस में जो है MPC में बच्ची हमारी 470 में से 466 मार्क्स लाकर स्टेट 3rd रैंकर हुई, और चारों के चारों बैचेस में बहुत अच्छे हमारे मार्क्स आए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है 1st ईयर में। खैर मैं एक तो अलमास और एक TH की तरफ से हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं खुद एक जमीयत उलमा का एक प्रेसिडेंट हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का। मैं तमाम इस वक्त बैठे हुए बच्चे और बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को अप्रिशिएट करता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन बच्चों को इनके नेचर और उनके नफ्सियात, उनकी साइकोलॉजी को सामने रखकर इनसे डिस्कस करके इनके फ्यूचर को डेवलप करने की फिक्र कीजिए। हमारी तांडूर की मजबूरी है कि हम 10th तक तो बगैर किसी प्लान के पढ़ा लेते बच्चों, 10th पढ़ाने के बाद सोचते, और वो भी बहुत से लोग जून में सोचते अब क्या लेना, YPC लेना, MPC लेना, कुछ तो भी बच्चे से पूछते बच्चा क्या लेना। बच्चे को बताइए अब क्या उसकी उम्र है उस वक्त डिस्कस करने की। होना चाहिए कि आप 10th के 9th के जो टीचर्स हैं जो आपके बच्चे पे 2-3 साल बहुत स्ट्रगल किए, आप उनके पास जाके 1 घंटा मेहनत की बैठिए, उनसे सजेशन लीजिए कि मेरा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में फास्ट है, मेरी बच्ची किस सब्जेक्ट में जा सकती है। आप उनसे of the dash, the parents and the students, it's very great to us to have established a PH Junior College by the Almas Group of Institution, and we had given a very great result which were in Tandoor. I think this is the first college who has given up 90% of the result, and the students really they had worked hard. And I thank to the Muslim Welfare Association to recognize us and motivate the student not only to our college but also the students those who have passed their 10th and intermediate. This will not only motivate them but also inspire the others. I am Patel Amulya from Krishnaveni Concept School. It is a true honor to stand before you all today on this special
occasion, a felicitation ceremony that celebrates not just success but also the dedication, passion and excellence that brought us here. I pay my immense gratitude to you all those who have gathered here to acknowledge the hard work, perseverance and achievements of us. Being felicitated is not just about receiving an award. It is a moment to pause, reflect and take pride in the journey that led us here. Behind every achievement, there are late nights, early mornings, challenges faced and conquered, and unwavering dedication and determination. Today is a proud moment, not only for us, but also for all the hearts and hands that supported us along the way. Behind every successful student, there is a teacher who believed, who guided, and who lit the path forward. Our teachers are more than educators. They are mentors, motivators, and often our second parents. Equally important is the quiet and constant support of our parents. From early mornings to late night revisions, from words of encouragement to emotional strength. Parents are the backbone of every achievement of us. They celebrate silently, sacrifice willingly, and give unconditionally. Dear students, as we receive our awards today, let us take a moment to remember those who stood behind us, our teachers who shaped our mind, our parents who shaped our character. Our success is never a solo journey, it's a shared victory. I extend my heartfelt gratitude to the Muslim Welfare Association for creating such a meaningful platform to celebrate achievements and for making us feel valued, honored and special. I would also take a moment to express my sincere appreciation to the greatest leaders, the principal of KVCS, Sri Prashant Garu, and the director of KVCS, Sri Satish Garu, for their visionary leadership, exceptional academic planning, thoughtful strategies, clear direction, continuous support, instilled discipline, motivation and love. And finally, my dear fellow mates, every day is special if you think, every moment is memorable if you feel, everyone is unique if you see. Life is beautiful if you live. Do more of what makes you happy and be your best. Embrace learning with enthusiasm, face challenges with courage, and know that the greater the difficulty, the more the glory in surmounting it. Thank you. Good morning everyone. This is Soha from Siddhartha Junior College. First of all, I would like to thank the Muslim Welfare Skills Development Society for the initiative to felicitate the toppers. I would like to extend a heartfelt gratitude to our college, Siddhartha Junior College, and principal, the mentor, the supporter, Narendra Reddy, to gain knowledge and educate yourself. At the end, what matters most is your knowledge and what the position you hold in this world. I request each and every girl to realize her importance. No one is going to tell her how important, tell you what is your position in this society. You yourself should decide what you have to. You are not meant to wash utensils. You are there to become a doctor, an engineer, an officer, or something else. Please educate yourself. It is my request to each and every girl. If your parents are not supporting you, then fight for yourself. No one will help you except your own self. And को याद कर रही है क्योंकि उनके बगैर कुछ भी नहीं होता. So everyone says टीचर्स के बाद अगर कोई पेरेंट्स के बाद अगर कोई है तो टीचर्स है. लिहाजा it is a very proud moment for the parents as well as the teachers. So I request. Good afternoon everyone. I am Asha Arshin from MPC. I am from TH Junior College. I am the state third topper. So I am very happy to become the state topper. It was all about the support which I got from my lecturers and from my parents. So if I talk about the faculty, it was a wonderful faculty and the education was very wonderful. So you can see me as an example. I am a student of TH College and you can see I am the third topper of our state. And you can see the lecturers are very supportive and the support. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
హిందువులు కానీ ముస్లిం కానీ అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంది. ఇప్పుడు మా పాపలకు ఇప్పుడు హిందీ వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అండ్ తెలుగు వస్తుంది. ఒక అంతలోనే ఆ భాష మీద ఇంక్లూడ్ అయితే కలిసిమెలిసి ఉండరు. ఒకరితో షేర్ చేసుకునే బాధ్యత ఉండదు. కాబట్టి మనం అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలని చెప్పి నా ఒపీనియన్. మా పాపకు ఎంత ఏమైనా చేసి నేను కొన్ని స్కూల్ తిరిగిన సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను సోషల్ మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్లోనే కొన్ని తిరుగుతుంటా. చైల్డ్ మ్యారేజ్లో కానీ చిన్నపిల్లల పెళ్లి అయితే వాళ్ళకు పోలీసు వాళ్ళు మళ్ళీ లేబర్ ఆఫీసర్లు కలెక్టర్ వాళ్ళతో తిరుగుతుంటే అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంటారు. కాబట్టి దయచేసి మీ పేరెంట్స్ నేను ఒకటి కోరేది ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకు వాళ్ళకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి. మనం చిన్నతనంలో పెళ్లి చేస్తే పల్లెటూరులో ఏమంటారంటే అరే నీ పాప పెద్దగా అయింది, నేను పెళ్లి చేయి, పక్కింటి ఆమె వస్తుంది వచ్చి ఏమంటారంటే నీ పిల్ల పెద్దగా అయింది, పెళ్లి చేస్తే బాగాలేదమ్మా ఇంకేం కనిపిస్తామని చెప్తాం. సార్ చెప్పారు ఇంకోసారి. అలాగే మనకి ఏ పుట్టలో ఏముంటుందో ఏం బాగుంటుందో తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళు డెవలప్ కావాలంటే వాళ్ళ కాలచేతుల మీద నిలబడప్పుడే వాళ్ళకు ఏదో ఒకటి వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. కాబట్టి దయచేసి మన పేరెంట్స్కు నేను చెప్పేది ఒకటి, వాళ్ళకి కోఆపరేషన్ ఇవ్వాలి. మనం వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడే మనం వాళ్ళకు తోడ్పాటు ఉంటామని చెప్పి ఈ అవకాశం పెద్దలకు. scored 984 out of 1000 and I have secured 5th rank in the state. I would like to thank my parents and friends, and I also like to thank all the Muslim Welfare Association members, President, Vice President, for engaging students. Thank you. बच्चे क्या हमारे में सारे बातें सुनने के बाद में दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कुछ कहूँ आप लोगों के सामने। इसलिए क्या हमारे में आगे बढ़कर आया है। बोलना ये है हमारी जो ये कमेटी है उसके ताल्लुक बड़े अच्छे काम कर रही है समझे नहीं, और जो भी है क्या हमारे में यहाँ की तलबात की उनकी हौसला अफजाई कर रही है। इसके लिए क्या हमारे में उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी बात से खासकर हमारे माशरे में तालीम की कमी है। जहाँ तक मेरा नजरिया ये है हमारे क्या हमारे तालीम की कमी है। मैं इसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे कई लड़कियाँ क्या हमारे यहाँ से विकाराबाद यहाँ वहाँ ट्रेनों में धक्के खाते हुए जा रहे आ रहे एग्जाम लेके आ रहे। इसके लिए क्या हमारे मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर जो भी डायट पर बैठे हुए साहिबीन हैं उनसे मेरी ये अब अदबन गुजारिश है इसके बारे में क्या हमारे में आगे फ्यूचर के वास्ते में सोचा जाए, क्योंकि हमारी बेटियाँ क्या हमारे में आराम से तांडू में पढ़ सके। क्योंकि तांडू में क्या है हमारे में हर वो चीज़ है। जैसा मौलाना ने फरमाया ये पत्थरों का जो है यहाँ पर हीरो की तराशने की भी सलाहियत रखनी चाहिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, यही बोलने के लिए मैं यहाँ पर डेस्क पे आया हुआ हूँ। और मुझे क्या हमारे में किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ ये कि भाई हमारी उम्मत आयमा के क्या हमारे में बच्चे क्या हमारे में पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, अच्छे बने, यही हमारी गुजारिश है। इसलिए क्या है मालूम है आप लोगों से मैं फिर गुजारिश करता हूँ। इसके लिए क्या है मालूम है आप ये प्रोग्राम रख रहे हैं इंशाअल्लाह इससे क्या है मालूम है फ़ायदा हो रहा है, तलबात का तालिबात का उनका हौसला अफजाई हो रही है। Make your success and don't stop. Even you have more struggles, you have hurdles in your path. So you don't stop. You start learning, and I'm very thankful to all of the principals and teachers and lecturers of our Temple Society, as our RLC sir also present here. All of them, all the Temple Society head officers, all of them given us the motivation for the further future. So I'm very thankful to all the principals, teachers, and my parents and all of them for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Staff and our parents. I see some parents just torture their students and just they force their students to get good marks, but my parents never torture me to study and never force me to get good marks. It's the good marks we get from our heart, from our success. And I would also like to thank our college staff for great support and their determination towards us. Thank you. All present here. I am Sudha Imrana from Siddhartha
Kamalata Junior College. I scored 483 marks out of 500 and the Tandu topper. I'm standing here to show the gratitude towards our faculty, my parents who have never ever tortured me. They have supported me in every condition. I would like to thank for everyone who has supported me, my teacher, my principal. He always make us in a good track. He always supported me. He gave us discipline, and I will thank to Skills Welfare Association for giving me this opportunity to stand in front of you and to express my feelings. Maulana sir and Abdurrahman sir for supporting us in each and everything and for making us giving us this ample opportunity to be the ranker of Almas International School. Thank you. I would like to thank everyone. सिचुएशन ये है कि हमारे जो बच्चे हैं 10वीं और इंटरमीडिएट जितने भी बच्चे कामयाब हुए उनको एक तरह का प्रोत्साहित करने के लिए जमा हुए हम लोग यहाँ पर। एक शुरुआत है, एंडिंग में ही कभी एंड नहीं होता है, कभी किसी को प्रोग्राम एंड नहीं होता है, एक शुरुआत है। यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिले, दूसरे बच्चों एग्जाम्पल मिले। इसी उद्देश्य यहाँ पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने ये प्रोग्राम रखा है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद सर फॉर ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम। इसी विषय में हमेशा कभी भी कोई कुछ अच्छा काम होता है तो इस तरह के प्रोग्राम रखने से हम लोगों को, हमारे बच्चों को एक इंस्पिरेशन के रास्ते खुलेंगे और लोग सोचेंगे आगे बढ़ने के लिए। और जैसे कि मैं अभी पता चला कि मुझे यहाँ पर तरह तरह की कोचिंग दी जाती है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी, सेविंग की सिलाई की मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में मैं आपको देख रहा हूँ कि DSC क्लास चल रही है। ये बहुत ही अच्छी मतलब सुविधा प्रोवाइड की सर आपने, आपको धन्यवाद सर। ये इससे जो है हमारे समाज को, हमारे लड़कियों को, हमारे जनरेशन को एक अच्छी कामयाबी मिलेगी। इसी उद्देश्य आपने ये काम शुरू किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर तरह तरह के प्रोग्राम, मेहंदी डिजाइनिंग चल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम सिखा रहे हैं। और सभी सुना है कि मैंने नेक्स्ट आने वाले समय में AC का भी जो है एक मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मेन पर्पस क्या है, यहाँ पर सभी को कामयाबी मिले, सभी को जीने का मौका मिले, ये एक उद्देश्य है। यहाँ पर आज का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सम्मान किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये मैसेज देना है हम लोगों के बच्चों को, बड़े हो या बच्चे हो, सभी को कामयाबी मिले और वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए। इसी सुविधा के साथ यहाँ पर जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को मैं फिर से एक बार धन्यवाद मुबारकबाद देता हूँ सर। और साथ ही साथ सब लोग ये स्पीच सुनने के बाद में ये पता चला कि यहाँ पर लड़की किसी से कम नहीं है, लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। हाल ही में आपने नाम सुना होगा, कितने लड़कियों ने नाम सुना? सोफिया कुरैशी का नाम किसने सुना, बताइए आप लोग, हाथ ऊपर कीजिए। सिंदूर ऑपरेशन के लिए अपनी जीत हासिल की है। इसके लिए यहाँ पर एक साबित होता है कि जो हमारे जो बच्ची हैं, अभी जो स्टार्टिंग में हम लोग सोच रहे थे कोई नहीं आएंगे, लेकिन एक के बाद एक कंपटीशन बन गया, सभी लड़कियाँ सामने आ रही हैं और अपनी मतलब जो कामयाबी के पीछे क्या किसका हाथ था, किसके पेरेंट्स का हाथ था, वो सब बता आपने। और साथ ही साथ ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों को कभी भी आप इनकरेज करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे की रुचि किस में ये पहले जानना जरूरी है, टीचर्स को और पेरेंट्स को। जिस बच्चे को किसी में रुचि है उसी के हिसाब से उसको आगे बढ़ने के लिए इंकरेज कीजिए। कभी ऐसे होता है कि इसने बेटे में जो डॉक्टर बनना चाहता था वो नहीं बन पाया, आप बनिए। बेटी में पायलट बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, आप बनिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि लड़की को क्या रुचि है, लड़के को किस में इंटरेस्टिंग है, उसी के हिसाब से उसको इंकरेज कीजिए, तभी वो कुछ बन पाएंगे। जब हम ये सोचेंगे कि नहीं बच्चा जो हमारा जो बोल रहा है सुनेगा और वही करना है, तो शायद बच्चे की रुचि उसमें नहीं होगी, एट लास्ट विल बी फेल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे की रुचि किस में है, उसी के हिसाब से बच्चे को आगे बढ़ने दो, उसी को आप सपोर्ट। आज ये प्रोग्राम को कामयाब किया है। शुरू में मैं जब आया था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आज ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हुआ,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आते आते ये हाल कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी की निशानी है, ये आप लोगों की जस्तजू है, आप लोगों की मेहनत है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब पहले उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख भी दी है। मैं भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें रखूँगा आपके सामने। कि सबसे पहले कैरियर गाइडेंस सेंटर हमारे नायब सदर साहब बताए कि अभी 10th क्लास के बच्चे इंटर में पास हो गए, 10th में पास हो गए, लेकिन आगे क्या करना चाहिए। तो ये लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, जैसा अजहर मौलाना ने बताया कि एंड वक्त पे जो है एडमिशन का लास्ट डेट है, आज डिसीजन लिया जाता है कि हमको क्या करना है। तो ऐसा नहीं, इंशाल्लाह एक हफ्ते 15 दिन में हम कैरियर गाइडेंस सेंटर यहाँ पे रखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। और सारे इंटर और 10th क्लास के बच्चों को हम इन्विटेशन भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। आप लोग आइए, हम हैदराबाद से कैरियर गाइडेंस के जो माहिरीन हैं उनको बुलाएंगे। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आपको आगे क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, वो आपको क्लियर कर आपको इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, मुस्लिम स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तहत एमसेट की कोचिंग भी दी जा रही है। आपके कुछ 10th क्लास के बच्चे पास हुए हैं, इंटर फर्स्ट ईयर में जाते हो, तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर इंटर फर्स्ट ईयर के बच्चे भी एमसेट की कोचिंग ले सकते हैं। अगले साल भी इंशाल्लाह हमारे पास कोचिंग रहेगी। हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उधर नीट की क्लास चल रही है, डेट की, नीट एंड डेट की टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये भी एक सेंटर कानून में नहीं था। 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम एसोसिएशन की कोशिश से ये सेंटर यहाँ पर कायम है। तो हम वेलफेयर की जानिब से हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं तालीम और साथ ही साथ फिर हुनर, क्योंकि घर में हमारे पास 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो सब सारे लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते मतलब कुछ कमज़ोर रहते, नहीं पढ़ते, इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उनके लिए हम चाह रहे हैं कि हुनर सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बाकी के बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, हम वो नहीं चाह रहे। वेलफेयर ये चाह रही कि आप या तो पढ़िए या तो कुछ काम सीखिए, दोनों में से कोई एक काम आपको करना ही करना है। तो ये फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं, वो फील्ड में भी हम काम कर रहे हैं। जैसा बात है कि एसी टेक्नीशियन का काम है, मोटर ड्राइविंग स्कूल है, और फैशन डिजाइनिंग है लड़कियों के लिए, मेहंदी का कोर्स है, टेलरिंग का है, टेलरिंग का मेहंदी का तो चल रहा है, बहुत क्लास चल रही है। स्किल डेवलपमेंट का माने मीनिंग वो है कि स्किल्ड हम आपको बनाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ आप पढ़े या कुछ ना कुछ होना हासिल करें। तो आप लोग खुशकिस्मत है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैं इंटर पढ़ा हुआ हूँ खाली। हमारे ज़माने में जब इंटर कॉलेज, जूनियर कॉलेज, और हम अफसोस भी करते थे कि हम नहीं पढ़े, लेकिन आज आप लोगों को देखने के बाद महसूस हो रहा है कि मैं अच्छा हुआ नहीं पढ़ा तो मैं भी कभी नौकरी पे चले जाता था, फिर ये काम कौन करते थे, अल्लाह ताला मेरे से ये काम लेना चाहता था, इसलिए हम पढ़े नहीं। मुझे अफसोस नहीं है मैं नहीं पढ़ा बोल के, क्योंकि इतने बच्चों को तालीम हासिल हो रही है। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरी पूरी टीम साथ है। ये पूरी टीम जब तक हमारे साथ है, इंशाअल्लाह इस तांडव में हम डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, तालीम डेवलपमेंट के लिए हम पूरा काम करेंगे। और आपको ये भी मालूम कर देना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह 2 साल, 1 साल लास्ट ईयर से तो हम गवर्नमेंट कॉलेज, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस का मुस्लिम वेलफेयर की तरफ से विजिट कर रहे हैं। विजिट का मकसद ये नहीं है कि वहाँ जाकर हमको टॉर्चर करना, हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे तालीम बराबर हो रही है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इतने पैसे खर्चा कर रही और गवर्नमेंट स्कूल में और कॉलेज में अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो उसके जिम्मेदार हम भी हैं। तो हम बराबर वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और NTR कॉलेज में उर्दू मीडियम स्कूल था, छोटा सा स्कूल, उसको 2-3 साल से ख़त्म कर दिए। इंशाल्लाह ये साल हम उसको चालू कर रहे हैं, बिल्डिंग भी देख लिए हैं, इंशाल्लाह वो चालू हो जाएंगे, क्योंकि उर्दू हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता पूरा ख़त्म कर दी जाएगी। हालांकि मैं भी उर्दू मीडियम नहीं हूँ, इंग्लिश मीडियम हूँ, लेकिन उर्दू हमको सीखना ज़रूरी है, सब सीखना चाहिए उर्दू। जब तक हम उर्दू नहीं सीखेंगे, हमारे को इस्लाम क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, हमारे को क्या शराइत है इस्लाम में, हम नहीं सीख सकते। दूसरे लैंग्वेजेस में भी है, इंग्लिश में भी है, तेलुगु में भी है, उर्दू में, दूसरे लैंग्वेज में, लेकिन उर्दू में जब हम पढ़ेंगे तो इस्लाम हमसे क्या चाह रहा है, हम क्या करना चाहिए, सोसाइटी को क्या करना चाहिए। इस्लाम कभी भी ये बात बताया है कि सारी इंसानियत के लिए काम करो, डेवलपमेंट करो तो सारी इंसानियत के लिए करो। तो हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ पूरा डेवलपमेंट जो कर रहे हैं हम, इसके अंदर आप देखेंगे मुस्लिम, गैर मुस्लिम हर बच्चे यहाँ पे मौजूद है। तो एमसेट में भी वैसी है, और हमारे टेलरिंग में भी वैसी है, मेहंदी में भी वैसी है। आगे जो भी हम कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह उसमें भी वैसे रहेंगे। और 10th और इंटर के बच्चों को, हम 10th के बच्चे जो फेल हो गए थे मैथ्स में, उनके लिए हम यहाँ पे स्पेशल क्लास रखे थे, ताकि 15-20 डेज अगर उनको हम यहाँ पे क्लास ले लेंगे तो वो लोग आगे पास हो सकते हैं। तो ये हम ऐसे कई चीज़ें हैं। और आप लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का
दौर चल रहा है। एक ज़माने में हम देखते थे, आज से 15-20 साल पहले आईटी बोलते पूरे बच्चे आईटी में चले आते। तो अब आजकल अब दौर एआई का हो गया, तो इसमें भी हम कंसंट्रेशन करना चाहिए। और इल्म जो है ना, आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे कि इल्म हासिल करना है तो चीन को भी जाओ बोले। तो चीन में तो जो इस्लाम नहीं था, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे अजहर साहब जैसा बताया कि यहाँ पे और कॉलेजेस और स्कूल्स होना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये वादा कर रहा हूँ कि तांडुर में इंशाल्लाह और एक जूनियर कॉलेज मुस्लिम इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से एक जूनियर कॉलेज इंशाल्लाह हम यहाँ पे शुरू करेंगे। अगर हुआ तो इंशाल्लाह यही साल शुरू करेंगे। अगर किसी वजह से हमको परमिशन नहीं मिला तो अगले साल तो हम इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ अगर हमारे साथ है तो बराबर हम शुरू करेंगे। उसी तरह स्कूल्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा तालीमी लाइन में है। और आपको बिला झिझक मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कभी भी आके हमारे को मशवरा दीजिए, क्योंकि मशवरे में खैर है। अल्लाह ताला बताए कि मशवरे से जो काम होगा वो कामयाब रहेगा। तो आप हमारे को बिल्कुल मशवरा दीजिए। నేటి వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.